Hello everyone. I'm here with the lecture 1 of SHRM. This is the specialization subject of human resource. Now you have taken the specialization in third semester of MBA. So this is your first lecture. Basically it is known by the name of strategic human resource management. Before knowing SHRM, we would like to know the strategy. The term strategy is pronounced here. हम जबकि SHRM के बारे में जाने उससे पहले हम स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे. स्ट्रेटजी की बेसिकली होता क्या है? एक प्लानिंग. As we are the student of management, we have to plan something for its execution. So strategy is a high level plan to achieve one or more goals under conditions of uncertainty. स्ट्रेटजी आप कब बनाते हैं? जब आपको लगता है समथिंग इज अनसर्टेन. Strategy is an action to manage, to take, attain, or one or more organizational goals. Basically, it can be defined as a general direction set for the company and its various components to achieve a desired state in the future. Strategy result in planning process. Basically, आपकी strategy है, then you can plan, then you can execute. If you are not having any planning, you cannot execute it. In our second semester of MBA, we have studies human resource management. In that, planning was a important part. So that planning introduced as strategy at the time of uncertainty. शेंडलर ने स्ट्रेटेजी को डिफाइन किया है. डिफरेंट ऑथर्स की हमारे पास डेफिनेशन है, पर हम यहाँ 4 ऑथर के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज शेंडलर, सेकेंड इज मेंट्सबर्ग, थर्ड इज Feld, and fourth is Jaw. Schindler determines strategy as a basic long-term goal for enterprise and the adoption of the course of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो लॉन्ग टर्म गोल्स लेती है उनको अचीव करने के लिए जो आप प्लानिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू शेंडलर. सेकेंड डेफिनेशन मेट्सबर्ग की है. मेट्सबर्ग कहते हैं आपको mediating force between the organization and its environment, consisting patterns in the streams of organizational decision to deal with the environment. मिट्सबर्ग के अकॉर्डिंग जो आपका एनवायरनमेंट है, यहाँ हम एनवायरनमेंट की पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द natural environment. We are talking about the environment, about our surroundings, because environment is denoted from environ, and environ means our surroundings. So we are talking about the surroundings. Felt ने strategy को define किया है as a fit and allocation of resources. ये stretch करता है leveraging of resources. Basically यह हमें बताता है what we should do in a particular condition. Jaw, strategy is unified. According to him, strategy क्या है? यूनिफाइड है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटिव प्लान है जो रिलेट करता है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के साथ फर्म के चैलेंजेस को पूरा करने के लिए. बेसिकली डिज़ाइन किया गया है इंश्योर करने के लिए बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को एंटरप्राइज के एंड टू अचीव इट थ्रू प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग. नाउ नेचर ऑफ strategy. Students, we are going to study this subject. This subject is very important in your life just because by strategic human resource management, you can plan out for the modern approach of human resource management. Modern approach क्या है आपकी? Modern approach है आपकी human resource management को strategy के through tackle करना. Some of students are doing certification course in this. Some professionals are also doing certification course in this, but we will study it as a subject. So basically अगर हम strategy के ऊपर की definition को पढ़ें तो हमारे अकॉर्डिंग नेचर क्या बनता है strategy का? वो एक मेजर कोर्स है जो हमें बताता है किसके बारे में? हमारी सराउंडिंग के बारे में, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. Basically, strategy is a blend of internal and external factors. It meets the opportunity and threats
to provide by external factors and internal factors. It is a combination of actions that are aimed to particular conditions to resolve certain problems or to achieve a desired action end. The action are different from situation to situation. Obviously, when there is a different situation, there will be a different action. Due to its dependence on environmental variables, strategy may involve contradictory action. मतलब हमेशा एक जैसा रिलाई करना, हमेशा एक जैसा एक्शन करना, रिएक्शन करना, that is not possible. Organization may take contradictory actions either simultaneously or with a gap of time. Just like क्लोजिंग डाउन के पास में एक फर्म क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी अपने बिजनेस को. फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म एंगेज इन क्लोजिंग डाउन ऑफ सम ऑफ इट्स बिजनेस एंड एट द सेम टाइम एक्सपेंडिंग सम. मतलब आपका फर्म मल्टी डायमेंशनल बिजनेसेस में अगर है तो वो एक बिजनेस को अगर स्लो डाउन कर रहा है तो दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करेगा, बिकॉज उसको एट द एंड ऑफ द ईयर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है. दैट स्ट्रेटेजी इज द फ्यूचर ओरिएंटेड. You can plan for the future. It is a direct connection with future. Just because you cannot plan why you are standing here, you have to deliver the lecture. You cannot plan just now. You cannot play for the yesterday lecture. You can play only for what? The lecture you are going to take in future. The strategy requires systems and norms of its efficient adoption in organization. Strategy प्रोवाइड करती है आपको ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर गाइडिंग एक्सपर्ट्स थिंकिंग टू टेक एक्शन. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द फर्म. नाउ कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी, बेसिकली 3 कंसेप्ट होते हैं आपके: कंपिटिटिव एडवांटेज, डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेटेजिक फिट. कंपिटिटिव एडवांटेज, माइकल पोर्टर 1985 में इन्होंने ही इवॉल्व किया था कंपिटिटिव एडवांटेज को. पोर्टर एजर्ट्स arises out of a firm creating value for its consumer. To achieve it, firm selects market. Basically एक firm जो अराइज आउट हुई है, जिसकी स्थापना हुई है, वैल्यू क्रिएट करती है अपने कस्टमर के लिए, गुडविल क्रिएट करती है अपनी, और उसे अचीव करने के लिए मार्केट में दे कैन एक्सेल एट प्रेजेंट एंड मूविंग टारगेट टू देयर कंपिटिटर्स. वो अपने कंपिटिटर को इम्प्रूविंग पोजीशन में देखकर खुद को इम्प्रूव करने के लिए, काम करने के लिए, बेटर पोजीशन, बेटर गुडविल बनाने के लिए. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द गुडविल. उस गुडविल को बनाने के लिए काम करते हैं. नेक्स्ट आता है आपका डिस्टिंक्टिव. डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ में आपका क्या आता है? कॉम्पिटेंस. जो डिज़ायर्ड फीचर होता है किसी भी कंपनी का, कन्फर्स करता है किसको? सुपीरियरिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. जस्ट बिकॉज विदाउट कंपटीशन देयर इज नॉट अ मार्केट, देयर विल बी मोनोपोली, एंड इन मोनोपोली नो वन कैन गेट बेनिफिटेड rather than the organizer. तो being a consumer, what is beneficial for us? Oligopoly. Key accents its definition by emphasizing that there is a difference between distinctive capabilities and reproducible capabilities. बेसिकली डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? जो आपकी रेप्लिकेटेड नहीं होती किसी भी कंपटीटर से, सेम उसके जैसी नहीं होती, लिमिटेड होती हैं, डिफ़िकल्ट होती हैं. यू कैन नॉट कंपेयर इट, देट आर नॉट रेप्लिका ऑफ दैट. एंड रिप्रोड्यूसिबल कैपेबिलिटीज़ आपकी कौन सी होती हैं? जो कंपनी अपने मैनेजमेंट स्किल, रिस्पॉन्स, डिलीजेंस और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के थ्रू क्रिएट करती हैं. मोस्ट टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ reproducible, just because nowadays technology is taking place day by day, so it is quite easy to take the capabilities by reproducible capability. Now strategic fit, बेसिकली ये मैक्सिमाइज करता है कंपिटिटिव एडवांटेज को एक फर्म के लिए. कैसे? हाउ? बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपकी कंपनी का होता है, ये इसको मार्केटिंग के थ्रू स्ट्रेटेजिक फिट इवॉल्व करता है एक क्रिटिकल एस्पेक्ट में, टॉप मैनेजमेंट वर्क में, मैचिंग में ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसी की,
and other opportunity and risk में. So it can be said that it creates risk created by environmental changes in ways that will be both effective and efficient over the time, such as resources will be deployed. Formulation of strategy. We were talking about strategy means planning and execution, and now we will talk about the formulation, how we can execute it. Strategy formulation refers to the process of choosing the most appropriate course of action of organizational goal and objectives and thereby achieving the organizational vision. The process of strategy formulation basically involves 6 main steps. पहला होता है आपका setting organization's objective. क्या objective है organization का? Component क्या है organization का? Generally ये define करता है उस स्ट्रेस को जो स्ट्रेटजी बनाते समय प्रोसेस करते समय रीच आउट होता है एम्प्लॉयर के माइंड में. ये फिक्स करता है ऑब्जेक्टिव्स को एज वेल एज जो हमारे हायर मीडियम रियलाइजेशन फैक्टर्स होते हैं उनको. इट इज़ अ वाइडर टर्म. एक तरह से डिप्लॉय करता है आपके रिसोर्सेज को उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और उन्हें फिक्स करता है एनालाइजेशन के बाद में दैट कैन इट बी अचीव्ड, क्या ये अचीव हो सकते हैं. ना एवेल्युएटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, उसको फिर एवेल्युएट करता है. प्लानिंग के बाद एवेल्युएट करता है, रिसर्च के बाद एवेल्युएट करता है. बेसिकली रिव्यू होता है उस पोजीशन का, क्या असेंशियल है क्वालिटेटिवली, एनालिटिकली व्हाट इज़ असेंशियल. क्वांटिटेटिव रिव्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का. द पर्पस ऑफ सच अ रिव्यू इज़ टू मेक श्योर that factors important for competitive success in the market, weakness as well as their competitors' strength and weakness. After identifying these strengths and weakness, an organization must keep a track competitors' moves and actions so as to discover probable opportunities of threats to its market or supply sources. Now, after doing evaluation of organizational environment, it goes for the setting quantitative targets. Quantitative मतलब जिनको आपने जांचा हो, परखा हो, सही तरह से उनकी गणना की हो इवेल्युएशन के बाद में. इसके पीछे का आइडिया होता है कंपेयर करना लॉन्ग टर्म कस्टमर को, इवेल्युएट करना उनके कंट्रीब्यूशन को, अपने प्रोडक्ट जोन के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में. Now fourth one is aiming in context with the divisional plans. बेसिकली ये कंट्रीब्यूट करता है आपके डिपार्टमेंट में डिवीज़न के लिए प्रोडक्ट की कैटेगरी को. इट आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. इट रिक्वायर्स अ वेरी केयरफुल एनालिसिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स. बेसिकली आप जानेंगे कि आपका जो एंड कंज्यूमर है उससे आपका रिलेशन क्या है. बेसिकली आप जानेंगे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आपकी कंपनी के प्रोडक्शन को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए क्या काम कर रहा है. बेसिकली आप जानेंगे जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसे रिटेन करने के लिए आपने क्या किया है. तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग और HR एक साथ मिल जाएंगे इसमें. परफॉर्मेंस एनालिसिस बेसिकली एनालाइज करेगा आपके गैप को प्लान और डिज़ायर परफॉर्मेंस में. मतलब आपने अपने एम्प्लॉय के लिए जो परफॉर्मेंस प्लान की थी और डिज़ाइन की है उनमें दोनों में कितना डिफरेंस है. ये इवैल्यूएशन होगा ऑर्गेनाइजेशन की पास्ट परफॉर्मेंस का, प्रेजेंट कंडीशन के डिज़ायर का, फ्यूचर के लिए डिज़ायर का, प्रेजेंट कंडीशन का. क्रिटिकली इवैल्यूएट करेगा एक डिग्री ऑफ गैप को परसिस्ट करने के लिए बिटवीन लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस. ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस होते हैं. इट इज़ बेसिकली एन अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इट्स प्रोबेबल फ्यूचर कंडीशंस इफ द करंट ट्रेंड परसिस्ट. अगर चलता रहता है ये ट्रेंड तो आगे आपको क्या करना है क्रिटिकली इवैल्यूएट करता है. देन चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी. उसके बाद आता है दिस इज द अल्टीमेट स्टेप इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन. द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज एक्चुअली चूजिंग आफ्टर कंसीडरिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. इसी के बाद में इसको चूज़ किया गया है पोटेंशियल लिमिट्स के साथ में.
as external opportunity. Now, it will come under strategy implementation. बेसिकली आपकी स्ट्रेटजी को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने फ्यूचर गोल को अचीव करने के लिए, इट विल यूटिलाइज एंड अमलगमेट बिटवीन व्हाट, द ओवरऑल स्ट्रक्चर, कंट्रोल सिस्टम, culture flow of strategies, competitive environmental. It develops organizational having potential of carrying out strategy successful. और ये सक्सेसफुल कैसे बनेगी जब आपका जो करंट एम्प्लॉय है वो आपके लिए उतने बेहतर तरीके से, हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ही स्ट्रेटेजिकली पढ़ेंगे. बेसिकली इट विल डिप्लॉय बेस्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट, उनको इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली फॉर्मुलेट करेगा स्ट्रेटजी को. इट विल नॉट गेट देम फेल्ड. ऑल्सो इट इज़ एसेंशियल फॉर दैम दैट स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट पॉसिबल अनलेस इट इज स्टेबिलिटी बिटवीन स्ट्रेटजी एंड ईच ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स प्रोसेस, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, organizational structure, this all will be included in that. Now we will study about the evolution of SHRM. बेसिकली पर्सनल मैनेजमेंट से HRM की तरफ इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ SHRM का. पहला इवोल्यूशन था पर्सनल मैनेजमेंट से उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना. ट्रेडिशनली इसको हम स्टेज में क्या बोलते थे, HR फंक्शन को मैनेजरियल फंक्शन की तरह सेटअप किया गया था. पर्सनल का मतलब होता है बच्चों एन एम्प्लॉय, इसको पर्सनल मैनेजमेंट बोलते थे पहले. देयर वर मेनली द फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग एंड मेंटेनिंग. बेसिकली उनको लेबर रिलेशन के थ्रू स्टाफिंग और मेंटेनिंग की जाती थी, गोल्स सेट किए जाते थे. उसके बाद में द पर्सनल मैनेजमेंट वॉज मोर सेंट्रलाइज्ड एंड ब्यूरोक्रेटिक विथ सम ओल्ड एंड ट्रेडिशनल अप्रोचेस. उनके ट्रेडिशनल और ओल्ड अप्रोचेस के साथ में कहीं ना कहीं वो ब्यूरोक्रेटिक थे. इट वॉज नॉट व्यूड एज द इन्वॉल्व इन कम्पिटिटिव और स्ट्रेटेजिक एरिया. वो बिजनेस के कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजिक एरिया में थे. कब तक की बात है, ये 1970 से पहले की बात है. उसके बाद में हमारा HRM आ गया था. बेसिकली HRM का जो मेन टास्क था वो था ऑर्गेनाइजेशन गोल को कमिटमेंट के थ्रू, पीपल कमिटमेंट के थ्रू पूरा करना. और यही मॉडर्न अप्रोच थी ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट से निकलकर. फिर HRM से SHRM, तो हम दो तरह से इवॉल्व हुए SHRM में. पहला था हमारा फ्रॉम पर्सनल मैनेजमेंट टू HRM और दूसरा था हमारा फ्रॉम HRM टू SHRM. फॉर द लास्ट 4 decades it was a dynamic and competitive business, dynamic और competitive business environment resulting from the globalization. बेसिकली आप मैनेजरियल कैडर को लेके आए नए वर्क फोर्स में, आपने मैनेज कराया काम कैसे होगा, कौन करेगा और कब तक होगा. इट वॉज अ बेसिक परसेप्शन. HRM कैसे मैनेज करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा इफेक्टिव रोल ऑफ परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन के. HRM फंक्शन आपका डायनेमिकली स्ट्रेटेजिकली डेवलप्ड हो गया है. अभी आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये भी आपको किसने बताया, SHRM ने. 1980 और 2000 के बीच की ये बात है जब हमें ये सब देखने को मिला था. एंड आफ्टर दैट 21st सेंचुरी में HRM की अप्रोच जो थी बेसिकली वो कॉग्निशन, HR लर्निंग, नॉलेज ऑफ HR, नेटवर्क डेवलपमेंट एंड परव्यू ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजरियल सिनेरियो हो गई. नाउ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका बेसिकली क्या हो गया, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट हो गया. आपको एक होता है एक्टिव, when there is something done an action then you will give a reaction, लेकिन ये उस एक्शन से पहले होने वाला एक्शन है तो इट इज़ कॉल्ड प्रोएक्टिव. आपको पता है ऐसा होना चाहिए. तो बेसिकली एक फिलॉसफी है पीपल की टू मैनेज बेस्ड ऑन बिलीव दैट ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूनिकली इम्पॉर्टेंट. दे आर इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन बिजनेस. SHRM aims to ensure that the culture, style and structure of an organization and the quality commitment, motivation of its employees contribute fully to the achievement of business objectives. HR strategy basically combine करती हैं लोगों को, activities को किस में organize करने में, programs को to meet the strategic objectives of an enterprise.
So this all was done for today. Thank you all. We'll meet again after that.